awards, honors like Delhi Ratan Award, Glory of India Award, Best Citizen of India Award, Leading Health Professionals of World, Cambridge, UK, and lots more, right? So on our invitation, Dr. Gupta agreed to join us and share his wisdom. We'd like to invite Dr. Vivek Gupta. Please. Hello, good morning. Good evening. When I do good morning, because in most of my webinar it has been America also. Good evening to everybody. It is 7 p.m. and I was rushing between the cases. Thank you very much, the organizers, Miraculous event, for giving me this opportunity to talk about COVID-19 and give you a little insight about the process and the procedures. We are going ahead with a lot of people suffering since November 2019. Everybody knows, let me give you a little basics about it. Why this is known as COVID-19? It's coronavirus disease. It started in December 19, that is why it is known as 19. Most of the people know it, but just to tell you. And this is novel coronavirus disease, and I will talk a little about the coronavirus disease and the impact overall and what to take precautions, how to live with it, because now there's an unlockdown, and how best we can do to save ourselves, and what have been the overall morbidity and mortality in the world, whether this will come back, when the vaccine will come, because the media is telling us so many things which may not be absolutely correct. तो अपने बारे में बताते हुए, should I speak in Hindi or English or English? English is as you want, no problem. The audience are mostly non-medical, or they are medical also? Medical, non-medical. Okay, so I have to be a little more simple. So I would like to share the slides. So first of all, I thank Mr. Pandey and other people from the Miraculous who have been kind enough to invite me, and this is really, I love speaking, I love teaching. I'm the chairman of Indo-European Course on Revascularization, and also I'm the chairman of Indo-European Conclaves. This is my almost 20 years working in Apollo Hospital. I'm a senior interventional cardiologist. So other than the awards, my passion is to do angioplasty. जो एंजियोप्लास्टी है जिससे लोग घबराते हैं वो मेरा पैशन है, लेकिन मोस्टली दे आर लाइफ सेविंग. तो मैं इस बारे में थोड़ा बताऊंगा दिल के बारे में भी कि भाई दिल की बीमारी भी बहुत ज़रूरी है. It is sometimes more important than corona. Corona has come and will go soon. But heart problems will never be going despite our best preventive strategies. So I'll share one slide about the Indo-European conclave, and then I will quickly show you this is what we did. I'll share this slide. So if you see this slide, I think you're able to see this slide now. No. Okay, can you see this slide? Yes. So this is just a brief introduction about Indo-European Course on Revascularization, Indo-European Conclave. We have done 16 webinars as such. This was the last one where we had invited Honorable Health Minister of Uttar Pradesh, Mr. Jai Pratap Singh, and one of the regular feature is Dr. Jack Lewin from USA, and we have other cardiologists. This was actually related to economy, so we had more economists than the cardiologists. But Dr. Ashokan, myself, and Dr. Honorable Som Prakash, who is the Minister for Commerce, was this. So coming now, I am going to share with the my presentation part. So can you see this slide now? Yes. Okay, so this is the presentation today. I'll start now. So what is COVID-19? I already told COVID-19 SARS-CoV-2. And this is a combination. I have put this ICR with Miraculous. So this is Miraculous event, and as of today, आज की तारीख में 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 11 लाख रुपए लोग संक्रमित हो चुके हैं. कुछ ठीक हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी त्रासदा है, बहुत ही बड़ी विपत्ति है, बहुत ही बड़ी कहते हैं कि
शायद विश्व में दूसरी बार 1928 में जो हुआ था, उसके बाद ये इस दशक की सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें डेथ हो चुकी 7,58,000। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इंडिया के ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखिए तो 30 जुलाई को 1.7 मिलियन थे, यानी कि 1,70,00,000, और 7 अगस्त को 2 मिलियन हो गए थे। वो आज की तारीख में मैंने जैसे बताया 2.1 मिलियन हो चुके हैं, यानी कि 2,10,00,000 लोग। Coming on to the Indian perspective, the things are not very rosy. If you remember, मैंने थोड़ा सा अलग अलग समय वेबिनार लिया तो हमें कंपैरिजन हो जाता है। 7 अगस्त को 20 लाख थे और 14 अगस्त को 24 लाख है। 30 जुलाई को केवल 15,90,000 लोग थे संक्रमित। ठीक है, डेथ के साथ साथ हमारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो 48 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। थोड़ा सा डाउट है इन फिगर्स पे, वो हम बाद में बताएंगे क्यों डाउट है। तो एक्टिव केसेस हमारे बहुत ज़्यादा है। अमेरिका सबसे ज़्यादा संक्रमित इस समय देश है, जिसमें 54 लाख लोग संक्रमित हैं, यानी कि अगर 2,11,00,000 में 54 लाख तो केवल अमेरिका में है, और 1,70,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। अभी लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा मृत्यु दर के बारे में बता रहा था, लोग कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस में मृत्यु दर इससे ज़्यादा है, लोग कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा की मृत्यु दर इससे ज़्यादा है, लेकिन या कैंसर की और हार्ट की अगर कंबाइन करके देखें साल भर की, थोड़ी इससे थोड़ा कम है, लेकिन लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में खास करके बात करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, ट्यूबरक्लोसिस की डेथ 15 दिन में नहीं हो जाती, ट्यूबरक्लोसिस की डेथ होती सालों साल में। मृत्यु दर ज़्यादा है, लेकिन आज ट्यूबरक्लोसिस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन बाद ही विल बी डाइंग। सो हियर द मॉर्टेलिटी इज़ वेरी एक्यूट। हमारे कई डॉक्टर्स इंडिया के या बाहर के वर्ल्ड के उनको हो चुकी है। अभी आज ही पता लगा, कलकत्ता के बड़े सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे, ही इज़ ऑन वेंटिलेटर। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन टुडे फ्रॉम द संगठन RSS, कि उनके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन वर्किंग विद RSS, उनके फादर इन लॉ वेंटिलेटर पे हैं और ही वांट्स टू बी शिफ्टेड। द क्वेश्चन इज कि हूएवर गेट्स इन्फेक्टेड ही हैज़ ए मोर्टेलिटी ऑफ 3 to 4%। हमारी गवर्नमेंट कह रही 2.5% या 2% रिस्क ऑफ डेथ आ गई है। आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन ओवरऑल मोर्टेलिटी इज लिटिल हायर देन व्हाट इज। सो हमने जैसे कि इंडिया पोस्ट 2nd मिलियन इन जस्ट 21 days, 2nd मिलियन इन जस्ट 21 days। आवाज मेरी आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी? एम आई ऑडिबल? Yes, we can hear you. So the 2nd million, that means 2nd million, 10 lakh. You are muted by host. I am muted. Okay, now it's okay. So India has posted its 2nd million in just 21 days. यानी कि 10 लाख लोग 21 दिन के अंदर आए. This is a very important rise. हम लोग कहते हैं why India is yet to improve while other countries are improving. This is a graph I've taken from the newspaper. That means we are just behind Brazil. नंबर 3 पोजीशन पे आ चुके हैं हम लोग. इकॉनमी हमारी नंबर 3 पे नहीं है. तो वर्ल्ड ट्रैकर के हिसाब से अगर देखें तो नंबर ऑफ डेथ्स दिल्ली में अभी थोड़ी सी कम हुई है. अगर पहले 4000 डेथ होती थी, अब हमारे 1200 या 1000 के आसपास डेथ हो रही है ओवरऑल. और हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस जो हो रहे हैं हमारे यहाँ वो अब 1200 के आसपास पर डे है, जो कि 4 से 5000 थे. अब दिल्ली इज स्लाइटली इम्प्रूविंग बट अदर स्टेट्स आर नॉट इम्प्रूविंग. तो ओवरऑल कंडीशन इज बैड. टेस्टिंग के बारे में इंडिया हैज़ टेस्टेड 10,000 पर पीपल पर मिलियन, लेकिन अभी लेटेस्ट आ गया है कि वी आर टेस्टिंग अबाउट 20,000 persons per million. But if you see अमेरिका करीब 60,000 पर मिलियन टेस्ट कर रहे थे. आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर टू बैड. आई वुड से कि हमको अभी उस जगह पहुंचना पड़ेगा, तब हमारे करेक्ट फिगर आएगी. अब उनका 1,20,000 पर्सन टेस्टिंग है पर मिलियन. सो वी आर फार वे बिहाइंड. आवर्स इज बिग कंट्री एंड वी नॉट ईजी टू मैनेज. द थिंग्स आर नॉट सो डिफिकल्ट. तो इंडिया बस टारगेट टू एटलीस्ट 5% ऑफ पॉपुलेशन को हमको टेस्ट करना जरूरी है. हमारी पॉपुलेशन ही 137 करोड़ की आबादी है. तो आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग हिज बेस्ट. सो अभी हम थोड़ा सा बीमारी के बारे में बताएंगे. बाकी चीज़ तो आपको पता ही है. रिकवरी रेट हमारी अच्छी हो रही है. वी आर रिकवरिंग फास्ट एंड मैं थोड़ा इसको ऐसा कर दिया. ठीक है. द इन्फेक्शियसनेस ऑफ SARS-CoV-2, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. अब देखिए, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और अभी तक आप सोचते थे कि ये बीमारी लंग की बीमारी है. जब तक हमने शुरू में जब लक्षण की बात होती थी कि किसी को खांसी आए, बुखार आए, तो वो कोविड का पेशेंट हो सकता है, इसलिए आप टेस्ट करा लीजिए. कई पेशेंट ऐसे देखे गए जिनको डायरेक्ट उनको मायोकार्डाइटिस हुई है और हल्का सा बुखार आया. 78% कोविड पेशेंट डेवलप हार्ट कंडीशन, एंड विच इज वेरी वेरी बिकॉज मोस्ट ऑफ द
जो होती है फाइनली वो आइदर एम्बुलिज्म की वजह से होती है, निमोनिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज, लेकिन जो डेथ होती है वो बेसिकली कार्डियक कॉज होता है या उसके होता है, और साथ साथ क्लॉट होता है, स्ट्रोक भी हो जाता है ऐसे पेशेंट में। क्यों होता है ये हम बाद में बताएंगे। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में वी वर द फर्स्ट टू बी डेजिग्नेटेड, अपोलो हॉस्पिटल वॉज डेजिग्नेटेड एज कोविड हॉस्पिटल। उस चक्कर में हम लोग ने बड़ी एक मुहिम चलाई, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल के चक्कर में बाकी पेशेंट्स आने में डरते थे। अभी भी हमारे ओपीडी में उतना रश नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर अस्पताल जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट ए advertisement, but I want to tell you that our system is so well recognized and so much proof that we are having a COVID safety and COVID safe hospital है हमारा ये। तो COVID safe hospital, just a minute, I'll take a call. Hello, चल रहा है, कहाँ चलेगा? Okay, sorry, our is the COVID safe hospital. Now we are using different kits. This is our cath lab and you can see we are completely covering ourselves. आप बताना चाहूँगा, मैं जब एंजियोप्लास्टी करता था उस समय कभी हम लोग मास्क भी नहीं लगाते थे, बिकॉज दैट्स नॉन इन्वेजिव और स्लाइटली लेस इन्वेजिव देन ऑपरेशंस। तो हमारा ये टेलीविजन प्रोग्राम भी आता था। डॉक्टर्स के बारे में जुलाई 27 की 15 दिन पुरानी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, लेटेस्ट फिगर मैं कल IMS से लूँगा। नंबर ऑफ कोविड इंडिया की डेथ की 1500 लोग, जिसमें से मॉर्टेलिटी है 126, यानी कि 8% डॉक्टर्स जिनको कोविड हुआ उनकी डेथ हो गई। अब ये एक बड़ा, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ए वेरी मच डिफरेंट। ओवरऑल पॉपुलेशन 3%, डॉक्टर्स 8%, बोथ फिगर्स आर करेक्ट। जबकि डॉक्टर खुद का इलाज मेरे ख्याल से विल बी मच बेटर देन जनरल पब्लिक, बिकॉज ही विल गो टू द बेस्ट हॉस्पिटल, ही विल गो ट्राई टू डू द बेस्ट। So there is some discrepancy in number of deaths, because also WHO also said, once America said that 3% mortality or 2.5% mortality as reported by us may not be actually true, because हम लोग क्या वो डेथ भी हो जाती होंगी जिनको कोरोना टेस्टिंग ही नहीं हुई। We are not able to test everyone because it's a vast country. I mean, I'm giving full credit to Honorable Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी जी, लेकिन चूंकि इतना बड़ा कंट्री हमारा केवल 20,000 पर मिलियन टेस्ट हो रहा है। अमेरिका की जो फिगर आ रही है वो 1,60,000 पर मिलियन टेस्ट कर रहे हैं। इटली ने 1 लाख टेस्ट किया पर मिलियन। तो वी आर टेस्टिंग 1/5 और इवन 1/6 और 1/7 ऑफ व्हाट द डेवलप्ड कंट्री जो उनकी मौत है। तो हमारे हिसाब से आई थिंक आवर मॉर्टेलिटी इज लिटिल मोर। सो अभी भी डरा नहीं रहा हूं मैं, लेकिन जब आपको पता है कि मॉर्टेलिटी कैन बी 5 to 6%, मॉर्टेलिटी मतलब 100 लोगों में 5% लोग हम नहीं बचा पाएंगे, 6 लोगों को, तो हमको बड़ा एहतियात से रखना पड़ेगा। हमको कोरोना नहीं होना है, ये हमको मुहिम चालू रखनी पड़ेगी। कई बार हमको बड़े रोजी पिक्चर आती है, ओनली 1.9% मॉर्टेलिटी। अरे बाईपास सर्जरी की मॉर्टेलिटी भी केवल 1% है, तो कोई बात नहीं है, कोरोना हो जाए मस्त रहो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डोंट टेक प्रिकॉशन। नो, आई वुड से आई विल डिफर हियर। मॉर्टेलिटी इज हायर देन व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड। नॉट, दिस इज नॉट डेलिबरेट, आई एम नॉट सेइंग। कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, हमको पता नहीं लगता वो मृत्यु कोरोना की वजह से नहीं हुई है या हुई है क्योंकि हमने कोरोना का टेस्ट ही नहीं कर पाया उसमें। यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू टेक केयर। इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, आई हैव लॉट ऑफ डिजीज। अब फाइनली कमिंग टू द डिजीज प्रोसेस, क्या होता है, क्यों बीमारी है। वैसे आप लोग काफ़ी टेलीविजन वाले पढ़ा देते हैं, लेकिन एक डॉक्टरी जो पढ़ाएगा थोड़ा समझ ज़्यादा आता है। तो ये कोरोना की बीमारी है, कोविड-19। फाइनली वायरस कैसे घुसता है और कैसे परेशान करता है, ये डायग्राम बड़ा अच्छा है अगर समझने के लिए। तो सार्स कोविड-2 एंट्री, ये नैनो मिलीमीटर का होता है वायरस, बहुत छोटा वायरस होता है। जब इसमें घुस जाता है सेल के अंदर तो एंटीजन प्रेजेंटेशन करता है और बॉडी उसको रोकने की कोशिश, कोई भी वायरस डिजीज होगी, बॉडी रिएक्ट करती है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। और इसीलिए ज़्यादातर खांसी जुकाम बुखार, आप सुनते थे कि खांसी जुकाम बुखार हुआ तो ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक हो जाते थे। भाई वायरल डिजीज है, एंटीबायोटिक की भी जरूरत भी नहीं है, ये सबको पता है हमको। वायरल है, वायरल बुखार है, कुछ चिंता मत करो। ज़्यादातर वायरस डिजीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा संक्रमित नहीं होती हैं कि वो बॉडी की इम्यूनिटी को ख़त्म कर दे। बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म नहीं करती है, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी इसको ओवर पावर कर जाता है। कि वायरस इतना ज़्यादा होता है कि ये सेल के अंदर डिस्ट्रॉय करके लंग में, हार्ट के अंदर, मल्टीपल थिंग्स, वी आर लर्निंग एवरीथिंग। तो फाइनली ये जो सार्स कोविड वायरस सेल के अंदर जाता है और ये एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और हमको IgM एंटीबॉडी और IgG, आप तो सुना होगा एंटीबॉडी टेस्ट हो रही है आजकल। एंटीबॉडी टेस्ट को सबको पता है क्या होता है। एंटीबॉडी टेस्ट हम ब्लड में चेक करते हैं कि इस बॉडी में कितना एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ, उसको कहते हैं IgG। ये मैंने आप IgG एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन जो हम ब्लड में चेक करते हैं। अगर किसी का एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब वो संक्रमण हो चुका है।
खराब बात यह है कि नॉर्मली वायरस डिजीज में ये एंटीबॉडी लास्ट करती है कम से कम साल भर, 2 साल, कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग। वैक्सीन में दिक्कत क्या आ रही है बताएंगे आपको। लेकिन अगर जो संक्रमित भी लोग होते हैं जिनको वायरस डिजीज हो चुकी कोरोना की, उनकी एंटीबॉडी केवल 2 महीने तक चलती है, ऐसी स्टडी ने बताया है। कहने का मतलब है 2 महीने बाद किसी पेशेंट को, किसी को कोरोना हो चुका है, 3 महीने बाद वो भी आम पब्लिक बन जाएगा कि उसको फिर से कोरोना हो सकता है। दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन, दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक केयर। आई थिंक वी हैव टू लिव विद वायरस एंड दिस इज साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है वो एंड स्टेज में होता है। इसके लिए कई चीज़ें होती है, इसकी डिटेल्स बताऊंगा नहीं। क्लिनिकल सिम्टम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, मैं एग्जाम्पल से बताऊँगा। एक हमारे दोस्त हैं, उनको कल टेस्ट हुआ कोरोना का टेस्ट। सिम्टम नॉर्मली क्या होते हैं? कफ, फीवर, डिस्निया और वायरल निमोनिया। और हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं? RT-PCR टेस्टिंग, जिसमें लिखा हुआ है RT-PCR टेस्ट हम लोग करते हैं। दिस इज RT-PCR टेस्ट। व्हाट इज RT-PCR टेस्ट? RT-PCR टेस्ट कई बीमारियों के लिए किया जाता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल एंटीजन टेस्ट करते हैं जो कि नाक के सीक्रेशन से निकालते हैं। इट इज़ नॉट अ ब्लड टेस्ट। आई थिंक एवरीबडी नोज इट नाउ, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू इट्स नॉट अ ब्लड टेस्ट। लेकिन इसकी सेंसिटिविटी 99% मानी जाती है। लेकिन ऐसे भी पेशेंट देखे गए जिसमें RT-PCR नेगेटिव, खांसी हो रही है, निमोनिया हुआ और उसका CT स्कैन किया तो पता लगा क्लासिकल, ये दिखाता हूँ CT स्कैन। ये CT स्कैन में क्लासिकल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। व्हाट आई मीन टू से कि 1 RT-PCR टेस्ट नॉर्मल, और अगर आपको सिम्टम क्लासिकल है तो प्लीज डू CT स्कैन, डोंट सिट क्वारंटाइन योरसेल्फ। ऐसे केसेस भी हैं। हमारे एक दोस्त है, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वन ऑफ द सीनियर पर्सन एंड मिनिस्टर ऑल्सो। तो ही हैज RT-PCR नेगेटिव, CT कराया, क्लियरली ग्राउंड ग्लास, तो CT स्कैन है, लंग ऐसा हो जाता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस का, ये नॉर्मल है, ये वो है। तो दिस इज। अच्छा, टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग 3 तरह की हम लोग कर रहे हैं। RT-PCR कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन। मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोलूँगा रैपिड एंटीजन के बारे में, तो सच बोलना भी जरूरी है। एक्चुअली हमारी जो पूरे देश में हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं रैपिड एंटीजन। RT-PCR टेस्ट में प्रॉब्लम क्या है? इसकी रिपोर्ट आती है कम से कम 24 घंटे में। वैसे अपोलो हॉस्पिटल टाइप के हॉस्पिटल में 8 से 12 घंटे लगते हैं। जो हमारे और प्रदेशों में है वो कम से कम 24 घंटे, 48 घंटे और 3 दिन में इसकी रिपोर्ट आ रही है। तो हमने क्या किया, हमारी सरकार ने सोचा कि हम एक टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसकी रिपोर्ट आती है आधे घंटे में। यह भी नेजल सिक्रेशन से होता है। अब इसकी दुविधा यह है कि पहले पता नहीं था। देखिए, दिस बीमारी नई है, जब बीमारी नहीं होगी तो हम लोग रोज सीखेंगे, एवरी डे इज लर्निंग। पहले कहीं नीचे पता भी नहीं था। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट में हम लोग ने पता लगा कि इसकी सेंसिटिविटी केवल 30% है, 32% है। कहने का मतलब है 100 कोरोना के पेशेंट को आप टेस्ट करेंगे तो 30 लोगों को तो बताएगी पॉजिटिव और 70 को बता दी कि नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉर्मल। इसीलिए जब भी टेस्टिंग की जाती है नेगेटिव आता है तो प्लीज कंफर्म बाय RT-PCR अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं। अब हम जो डेटा दे रहे हैं, जो इंडिया का डेटा है, उसमें 30% तो RT-PCR का है और 70% रैपिड एंटीजन का। दिस इज माई रफ एस्टिमेट, एक बार मैं पढ़ रहा था। यानी कि अगर हमारे पास इतने केसेस पर डे हो रहे हैं तो हम सोचेंगे कि एक्चुअल होंगे वो इसके दुगने या 2.5 गुना होने चाहिए। तो दिस इज वन फैलेसी, दैट मीन्स वी आर स्टिल गोइंग अप। इट्स नॉट आवर कंट्री फॉल्ट, इट्स नॉट एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट, इट्स नॉट आवर मिनिस्ट्री फॉल्ट। ये बीमारी ऐसी है कि जरा सा वायरस टच किसी का हो गया, हवा में भी हो सकता है, मैंने अभी दिया भी हर समय पीने के लिए थोड़ी देर निकाली, मास्क लगाए हुए, बताऊंगा इसके बारे में डिटेल्स। तो हमारे एंटीबॉडी टेस्ट है केवल संक्रमण के लिए और रैपिड एंटीजन भी कंफर्म करने के लिए है। आई है मिनिस्ट्री की इसको हटा के RT-PCR करें, लेकिन ये 48 घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो तब तक पेशेंट क्या करेगा, इसलिए 30 हमने ये निकाला तरीका। चलिए, कमिंग बैक टू द टेस्टिंग, अब हम आते हैं, वी विल टॉक अबाउट वायरल लोड। मेडिसिन कैसे काम करती है, दवाइयों के बारे में बताता हूँ। अब देखिए, ये बीमारी अभी तक हमारे कितने हो गए, 8 महीने। फरवरी में आइदर इट वाज फॉल्ट कहेंगे या मिस करना। आई विल नॉट से ब्लेम एनीबॉडी, इट इज मिसिंग यू। समटाइम यू मिस द डायग्नोसिस, पेशेंट आता है आपको हार्ट अटैक, मिस कर दिया आपने। I mean, anybody can do it, all are human being. Whether it was a miss from the WHO or it was a miss by whatever authorities, that nobody took it seriously. तो खांसी जुकाम बुखार है, वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, चला जाएगा।
तो 24 फरवरी तक तो लॉट ऑफ पीपल केम फ्रॉम अमेरिका, बिग डेलीगेशन, आगरा भी गए, आई वाज ऑन टेलीविजन, आई रिमेंबर द डेट बिकॉज दैट वाज माय बर्थडे आल्सो, सो मुझे वो डेट याद हो गई जब ट्रम्प साहब इंडिया आए थे, इट डजंट मैटर। तो अब ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, अभी तक कोई रामबाण नहीं है, अभी भी कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, जैसे कि टेरिसेप्ट्रान दे दिया या कोई ऐसी बीमारी का आ गया। और वैक्सीन अभी आने में टाइम, वैक्सीन बारे में बताऊंगा। आई विल टेक अनदर 10 मिनट्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पब्लिक सुन रही है इस रिकॉर्डिंग, सो यू कैन शो टू अदर पीपल। सार्स कोविड वायरस एंटर किए, ये सेल है, सेल मतलब बॉडी के अंदर सेल बना हुआ है, इस सेल की वॉल है, ये अंदर घुसा और इसके बाद इसने पॉलीपेप्टाइड बनाए, आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाई और ये इसको पूरा डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल गया। दिस इज हाउ द वायरस इज डिस्ट्रॉइंग द सेल्स। व्हेन द सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, तो जैसे लंग का सेल डिस्ट्रॉय हुआ तो खत्म हो गया। इसके साथ साथ ये एक प्रोटीन ऐसा प्रोड्यूस करता है वायरस, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर खून जमने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी खून गाढ़ा हो जाता है। ये बहुत दिन बाद पकड़ पाया, ये मार्च अप्रैल में मैंने वेबिनार किया, पहला वेबिनार 28 अप्रैल को। हम लोग पता ही नहीं लगता क्यों डेथ हो रही है, पेशेंट ठीक हो गया, वेंटिलेटर पे आ गया, पता लगा सडन डेथ हो गई, पैर में उसको खून का थक्का बना और वो लंग में चला गया। यानी कि ये प्रॉपर्टी इसकी कि ये खून का थक्का बढ़ाने में मदद करता है, ये बहुत लेट पता लगा, बहुत कम वायरस ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काम करती है इस लेवल पे। रेमडेसिविर का नाम आपने सुना होगा, फेविपिराविर आजकल टीवी ने सिखा दिया है कि नई एंटीवायरल मेडिसिन वो यहाँ काम करती है। और साथ साथ कुछ दवाइयाँ अलग अलग, टेक्लुज़ुमैब यहाँ पे साइटोकॉन स्टैम में काम करती है। तो अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग लेवल पर काम करती है, लेकिन कोई भी 100% श्योरिटी नहीं है दवा के बारे में। अब कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा चर्चित दवा रही है और लोगों ने इसको कहा, अबेंडन किया, नहीं यूज़ होनी चाहिए। दूसरी दवा है आइवरमेक्टिन, जो कि हम लोग पेट में कीड़ों के लिए देते हैं। फिर एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, रेमडेसिविर बड़ी महंगी है, ये 20-22 हज़ार का पड़ता है, और ये सब बहुत महंगी दवाइयाँ जो उनके लिए है जो कि बहुत सीरियस हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ मैं अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की चर्चा मैं जरूर करूँगा। अभी भी डाउट है लोगों को, देखिए मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ICMR ने गाइडलाइन लाए मार्च में कि भाई सबको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खानी चाहिए, अप्रैल में भी आई, खास करके प्रिवेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक क्लोरोक्विन मलेरिया की दवाई है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उसका छोटा भाई है या बड़ा भाई कह लीजिए, जो कि आर्थराइटिस में इस्तेमाल होता है। तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग क्लोरोक्विन, वी आर रिकमेंडिंग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन विच इज सेफर एंड लेस टॉक्सिक। फ्रांस के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रोल्ट, इसमें ये केस में फंसे हुए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं बताऊंगा। परसों का मामला है, डीडियर रोल्ट, हम फ्रांस में काम करते हैं तो आई नो हाउ टू स्पेल, इसको डीडियर नहीं कहेंगे, डीडीए बोलते हैं, आर इज साइलेंट। मार्से साउथ ऑफ फ्रांस में एक शहर है मार्से। फरवरी 2020 में इन्होंने एक स्टडी, पहले तो इन्होंने मना किया कि बेकार की, वायरोलॉजिस्ट है बहुत बड़ा, इसने ये फ्रेंच में बोला, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू हियर इट, बट ही गेव ए लेक्चर इन फरवरी एंड ही कंडेम्ड, क्योंकि उस समय फरवरी में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद मार्च में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की रिक्वेस्ट की अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से कि हमारा खत्म हो रही है, आप भेजो। इसकी ट्रेजेडी बताऊंगा, इस बीमारी की, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद इस बीइंग रिकॉर्डेड एंड आई वांट टू टेल यू इट इज सच ए चीप मेडिसिन, व्हाई इट हैज बीन अंडर सो मच प्रेशर। फरवरी में इसी प्रोफेसर ने कहा कि जरूरत नहीं है इसकी, काम नहीं करेगी। लेकिन अप्रैल 9 को उन्होंने स्टडी प्रोड्यूस की, अप्रैल 9, और उन्होंने 1000 पेशेंट्स को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया, साथ में एजिथ्रोमाइसिन भी दिया, और इन्होंने पाया कि 91% पेशेंट ठीक हो गए, केवल 4% की डेथ हुई, सॉरी उनको इन्फेक्ट हुआ, और ओनली 0.47% डाइड, जो कि सीरियस पेशेंट थे। इट्स ए वेरी पॉजिटिव स्टडी, अप्रैल 9। उसके बाद अमेरिका ने स्टडी किया, चाइना ने किया, लेकिन सबसे दिक्कत करी अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक स्टडी डाल दी, अप्रैल में पब्लिश हुई लेट में। उन्होंने कहा हमारे पेशेंट की डेथ हो गई ज़्यादा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन शुड नॉट बी यूज्ड, अबेंडन। WHO ने ट्रायल बंद कर दिया, फिर ट्रायल शुरू कर दिया। WHO इज कंफ्यूज बॉडी, कंफ्यूज नहीं है, एवरी डे इज चेंजिंग, तो वो भी क्या करे, कभी ट्रायल शुरू करता है, कभी बंद करता है, कभी शुरू करता है। लेकिन अब इसमें ये लेटेस्ट ये है कि मिस्टर रोल्ट इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ फ्रांस। वाई? बिकॉज लेटर ऑन इन्होंने एक पुलिस केस किया अगेंस्ट समबडी कि उनको, अभी दिस इज इन द न्यूज, सो आई कैन शेयर इट, इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, दैट ही इज गेटिंग डेथ थ्रेट बाय नोबडी बट समबडी फ्रॉम द अनदर कंपनी जिसकी दवाई रेमडेसिविर आती है। आई मीन दिस इज अ ह्यूज, आई मीन दिस इज समथिंग विच इज अनएथिकल। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने जब स्टडी प्रोड्यूस की, इन्होंने कहा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काम करती है, तो देयर वर पीपल हु हैड मोर मेडिसिन, जैसे कुछ और दवाई रेमडेसिविर है या कोई और है,
जो उसके निर्माता थे उन्होंने इन पे केस कर दिया, इनको डराया कि आप बोलना बंद कर दीजिए। आज की तारीख में आई स्टिल से इट हैज़ प्रॉपर्टी एंटीवायरल, और एक दो स्टडी आ गई, ICMR ने भी स्टडी की है कि ये खानी चाहिए। एक तो दो तरीके दवाई खानी जाती है, तो जिसको हो जाए और जिसको ना हो। प्रिवेंशन के लिए मैं आज की तारीख में कहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं सुनते रहें। अभी मेरे पास पाकिस्तान से कल एक वो आया व्हाट्सएप मैसेज, इज योर गवर्नमेंट स्टिल रिकमेंडिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिकॉज दिस इज अंडर डिबेट। मैं कहता हूँ यस, इवन आई एम टेकिंग ऑल्टरनेट डे। उसका रीजन बता दें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक ही रिस्क है कि ECG में QTC इंटरवल नहीं बढ़ा होना चाहिए। QTC इंटरवल एक होता है, यानी कि जो पेशेंट हार्ट पेशेंट हैं, जिनका बाईपास हो चुका है, जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनको देने में एहतियात बरतनी पड़ेगी कि एक ECG चेक करा ले, नॉर्मल है, कार्डियोलॉजिस्ट जैसे किसी और से भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके अगर नॉर्मल है तो जो इसकी डोज है 400 मिलीग्राम, जो लोग सुन रहे हैं प्लीज़ खाएं। 400 मिलीग्राम पहले दिन सुबह शाम, और फिर 400 मिलीग्राम वंस अ वीक। अब कोरोना चल रहा है, पहले 7 हफ्ते के लिए कहा गया था, अब कोरोना इज इंडेफिनिट, तो यू हैव टू टेक इट इंडेफिनिटली टिल कोरोना सबसाइड्स एंड इट विल प्रिवेंट यू। ये बीमारी रोकेगी नहीं, मास्क का ये दिस नॉट ऑल्टरनेटिव टू मास्क। बट अगर आपको बीमारी हुई तो आप वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचोगे, आप सीरियस निमोनिया नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, यानी कि इट विल सबसाइड इफ एट ऑल। आपको टेस्ट हो सकता है बुखार भी ना आए एंड यू रिमेन एसिम्प्टोमेटिक और जल्दी ठीक हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये आपको मैं सबको बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आप लोग खाएं। व्हाट अ रीपर्पज मेडिसिन, ये बताना चाहते हैं। रीपर्पज मतलब किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसको रीपर्पज कर ले कोरोना के लिए। हमारे फादर ने एक ट्रायल दिया है। हमारे फादर फार्माकोलॉजिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट है और मेडिकल प्रोफेसर है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने एक नई दवा निकाली है जिसका नाम अभी नहीं दे सकते क्योंकि वो ट्रायल में जाने वाली है। वो कहते हैं अगर इस दवा का इस्तेमाल किया जाए तो डेथ रेट विल कम टू लेस देन 0.5%। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी चीप मेडिसिन यूज फॉर समथिंग एल्स। तो इसके लिए अभी प्रपोजल दिया हुआ है, लेट अस सी व्हेन इट कम्स बैक। एक दवा आती है आइवरमेक्टिन, इसको एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन, जैसे कि आपने सुना होगा एल्बेंडाजोल, जो जेंटल के नाम से आती है पेट के कीड़ों के लिए, उसका भाई है। इसको भी एंटीवायरल स्टडी है, इसको इसका फायदा, इसके ट्रायल अभी नहीं हुए हैं। रेमडेसिविर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसके ट्रायल हो चुके हैं और ये फायदा करती है। टिक्लोजुमैब, कोल्चिसिन। अब हम इसको आगे बढ़ते हुए, अच्छा जिस पेशेंट को कोरोना हो पहले प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए इनिशियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन हम प्रिवेंशन बता रहे हैं। विटामिन C खानी चाहिए। देखिए विटामिन C क्यों खानी चाहिए, बिकॉज इट इज इम्यून बूस्टर। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ, कई लोग विटामिन C खा तो रहे हैं, कितनी खानी चाहिए ये नहीं पता। कम से कम 3 ग्राम पर डे खाएंगे तब इसका इम्यून बूस्टर आएगा। आपको जो मैं ऑरेंज जूस पी रहा हूँ, नींबू पानी पी रहा हूँ, दैट इज नॉट इनफ। विटामिन C मैं जो लिखता हूँ 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार, कितना हुआ, करीब 3 ग्राम हो गया। ये रेगुलर खाइए, इट इज अ वेरी सेफ थिंग। साथ साथ जिंक की टैबलेट खाइए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और जो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। अब कमिंग टू द मास्क एंड अदर थिंग्स के अलावा हम एक विटामिन डी इन सबको खानी चाहिए टू प्रिवेंट इट। और आपको अगर कहीं लगता है आपने पता नहीं वो ऐप लगाया कि नहीं है, फाइनली वी नो सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। बस सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मीटिंग्स में आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर निकलोगे आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल इज नथिंग लाइक सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग। हम अपोलो में बैठते हैं तो कई बार पेशेंट 1 मीटर पे आ जाता है, कई बार 2 मीटर हम घिसकाते हैं, लेकिन फिर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंटिन्यू विद मास्क और रुमाल। इसके बारे में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो हाउ टू यूज मास्क, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। N95 है और 3 प्लायर मास्क है। अब जो हेल्थ केयर वर्कर है वो N95 यूज करें, अदरवाइज 3 प्लायर मास्क, सर्जिकल मास्क इज गुड इनफ। 29 मार्च को, दिस इज 26 मार्च को जब शुरुआत हुई थी कोरोना की और लॉकडाउन के केवल 2 दिन हुए थे, लॉकडाउन केवल 2 दिन थे, तो मैं टेलीविजन पे मैंने बोला कि भाई आई वाज क्रिटिसाइज्ड कि हर आदमी मास्क या रुमाल जब भी बाहर निकले, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर मतलब किसी को बुखार नहीं आया और हमेशा एसिम्प्टोमेटिक मतलब वो सिम्टम नहीं है लेकिन वो कोरोना से ग्रसित है। तो 26 मार्च को मैंने बोला तो काफी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, शायद आवाज नहीं आ पाएगी इसमें। प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं ओके WHO की गाइडलाइन में कल देखा था उसमें कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कैन आल्सो इन्फेक्ट द पीपल, जिसको बताया कि 5-6 दिन तो लगाते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी है। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज। अच्छा हमारी आ रही, ठीक, कोई बात नहीं। फिर हम इसको इसलिए बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कोई वजह से मैं कर
फिर 29 मार्च को एक ऐसा किस्सा हुआ था, आपको शायद आनंद विहार टर्मिनल का याद होगा कि एवरी लॉट ऑफ माइग्रेंट वर्कर दे गॉट कलेक्टेड एट आनंद विहार टर्मिनल। उस समय मैं किया, इस तो सोशल लॉकडाउन का एक उपहास हो गया, कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे कर रहे हैं। तो मैंने उस समय यूज़ किया था वर्ड मास्क, रुमाल या अंगोछा। अंगोछा वर्ड हम लोग यूपी में अंगोछा वर्ड कहते हैं। हमने गरीब आदमी है, किसी के पास मास्क नहीं है, आप केवल एक काम कर दीजिए कि सबको कहिए कि अंगोछा लगा ले मुंह के ऊपर, यू कैन प्रिवेंट इट। तो अगेन आई वॉज क्रिटिसाइज कि भाई कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन सेम आफ्टर फ्यू डेज अप्रैल में भी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री भी अंगोछा पहन के बैठे थे, तो इट वॉज ए गुड थिंग। कमिंग ऑन टू द वैक्सीन, कहने का मतलब है आज की तारीख में अगर घर के बाहर आप निकलें पूरा कवर करिए। एयरबॉर्न है कि नहीं है कहना मुश्किल है, हो सकता है एयरबॉर्न हो। कई लोगों को ऐसे लोग हैं कहते हैं हम तो घर में ही रहते, थोड़ा सा बाहर निकले थे, हम किसी को टच भी नहीं किया, हमको कोरोना हो गया। तो कहने का मतलब है कि यू हैव टू कवर योर मास्क। और घर के अंदर भी एक स्टडी आई है, वेयरिंग मास्क एट होम कैन लिमिट द स्प्रेड। हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं। अब हम लोग पहनते तो नहीं है, मैं तो कोशिश करता हूँ पहन लूँ, लेकिन कई बार लोग नहीं पहनते। तो घर के अंदर भी अगर फेस कवर करें, वेरी स्पेशली व्हेन यू आर मीटिंग योर पेरेंट्स, तो ठीक रहेगा। वैक्सीन का क्या है सिचुएशन? वैक्सीन का एक बहुत बड़ी एक ICMR ने एक वो प्रोड्यूस कर दी कि 15 अगस्त को हम वैक्सीन ले आएंगे। अब वो पॉसिबल ही नहीं था, तो उसको मैं इस बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, वो पता नहीं उन्होंने कैसे कहा था। ये एक चार्ट है वेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप सुनिए, कोविड-19 वैक्सीन ट्रैकर। ये थोड़ा जुलाई के एंड का है, 15 अगस्त का नहीं है। अब जो ओवरऑल करीब 165 कंपनी बना रही हैं, बट दे आर इन द रेस। उनका दोनों फायदा है, देखो लोग बिजनेस भी करते हैं इसमें, जिसकी वैक्सीन आएगी बिकेगी तो फायदा होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा R&D में पैसा भी लगता है। तो वैक्सीन के 5 चरण होते हैं। पहला होता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, ये आप लाल में देख रहे हैं प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। फिर होता है क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अभी तक जो सिचुएशन है जो रशिया की, उसके बारे में तो हम बाद में बताएंगे आपको रशिया की वैक्सीन कहाँ पहुँच रही है, लेकिन हम बताना चाहते हैं चाइना की वैक्सीन है जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है 2, और एक कहता है मैंने अप्रूवल ले लिया, इसको कैंसिनो नाम का है। फिर अमेरिका की है वैक्सीन जो नोवावैक्स, मॉडर्ना वैक्सीन जो फेज 3 में चल रही है। फेज 2 के बाद फेज 3 आ गई है थोड़े दिन पहले ही। फेज 3 मतलब अब क्या होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसका समझ लीजिए। पहले तो रिसर्च होती है एनिमल्स पे, पहले इन विट्रो टेस्टिंग होती है। इन विट्रो मतलब लैब में, कि हमने कोरोना वायरस को लैब में एक वैक्सीन बनाई और उसको हमने टेस्ट किया, वो उसको खत्म कर दिया, वो कोरोना वायरस ने कर दिया। दूसरी टेस्टिंग होती है एनिमल्स पे, तीसरी होती है ह्यूमन पे। फेज 1 में करीब 50 लोग टेस्ट किए जाते हैं, फेज 2 में करीब 100 से लेकर 500 लोग, और फेज 3 में हजारों की संख्या में होनी चाहिए टेस्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड अंडरस्टैंड। वैक्सीन इज नॉट ए जोक। अगर वैक्सीन लगाई और कोरोना हो गया तो आपने क्या प्रोड्यूस किया? वैक्सीन लगाई, आपको फायदा नहीं हुआ। एफिकेसी एंड सेफ्टी द 2 मेजर्स, इट्स नॉट ए जोक। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में अभी तक, जैसे कि अभी तक जो एड्स की बीमारी की वैक्सीन नहीं आ पाई, लेकिन हम लोग इसकी वैक्सीन आ जाएगी जल्दी, आई एम होपफुल। तो फेज 3 में कम से कम 10,000 से लेकर 15,000 लोगों को टेस्ट किया जाता है, उनको वॉच किया जाता है 3 से 6 महीने और कई बार साल भर तक, कि उनको कितने दिन तक ये वैक्सीन काम कर रही है, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए वैक्सीन कितने दिन काम करेगी। अच्छा, हमने क्या किया है, अभी हमारी जो क्लिनिकल ट्रायल चल रही है हमारे इंडियन वाली, भारत बायोटेक, अभी फेज 1 में चल रही है, फेज 2 में आने वाली है। अब सब लोग शॉर्टकट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फेज 1 20 लोगों को टेस्ट कर लिया, फेज 2 में हमने केवल 100 कर लिया, और फेज 3 में हमने 1000 कर लिया। व्हाट रशिया हैज डन, रशिया ने जो वैक्सीन की है वो एवरीबडी इज वांटिंग कि मैं कर दूं, मैं आगे निकल जाऊं, मेरा नाम हो जाए। रशिया ने जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू करा है अभी अगस्त 12 को, इस बारे में मैंने एक वीडियो यूट्यूब बनाया था, उसमें बताया था एक्चुअली फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इन विच दे आर एनरोलिंग ओनली 1200 पेशेंट्स, 1200-1300 लोग हैं। अब उन्होंने कहा कि मैंने बेटी को भी लगा दिया, दैट्स अनदर थिंग, आप बेटी को भी ट्रायल में ले लिया, बट दैट इज नॉट कमिंग टू द मार्केट। अब 1200 वर्सेस 15,000 बहुत फर्क है। अब शॉर्टकट करना, वेदर इट इज सेफ और नॉट, हम लोग शायद इंडिया में शॉर्टकट नहीं करेंगे, इट विल टेक लिटिल लॉन्गर, बट वी हैव टू डू इट। अमेरिका इज नॉट डूइंग शॉर्टकट। यूनाइटेड किंगडम की जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फेज 3 में पहुंच चुकी है, एंड दे आर एनरोलिंग मोर देन 15,000 पेशेंट्स, दैट दे आर डूइंग द राइट एथिकल थिंग। तो अभी टाइम है, लेकिन आएगा। तो वैक्सीन इज द ओनली थिंग। तो वैक्सीन में 2 चीज़ चाहिए हमको, एक तो सेफ्टी चाहिए और दूसरी एफिकेसी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कितने दिन काम कर रही है, हर 3 महीने पे लगवानी पड़ेगी, हर साल लगानी पड़ेगी, हर 6 महीने लगानी पड़ेगी। ये तभी हो सकता है जब हम वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कम से कम 6 महीने करें। पता नहीं लगे ना, आपने लगा ली और आपने सोचा साल भर रखनी, जब साल भर तक ट्रायल करोगे तभी तो पता लगेगा कि आप साल भर है। तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, लेकिन एवरीबडी थिंकिंग। तो मोर इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, मोर इंपॉर्टेंट इज कोई ऐसी दवा आ जाए जो ठीक कर दे और प्रोफाइलैक्सिस में काम करे, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या आइवरमेक्टिन है।
आइवरमेक्टिन एक नाम की दवा को यूपी में अब प्रिवेंशन में दिया जा रहा है, सबको दे रहे हैं कि प्रिवेंशन में खाओ, हफ्ते में एक गोली खाओ, समथिंग लाइक दैट। आरोग्य सेतु ऐप पे अभी थोड़े दिन पहले आप पढ़ रहे थे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आई है। पहले होता क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने भी आपने मोबाइल पे ले रखा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ऐप आपके पास है। अगर आपके पास ब्लूटूथ ऑन है और बाकी एक चीज़ और ऑन हुआ है, तो आप अगर किसी पेशेंट कोरोना के अगल बगल गुजरे और उसने रिपोर्ट कर रखा है, देखिए पेशेंट मतलब ये नहीं है कि पेशेंट है उसको रिपोर्टिंग नहीं हो, उसने RT-PCR करा रखा है और ICMR के पास और गवर्नमेंट पर गाइडलाइन है, तो उसके मोबाइल में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, तो वो किसी और मोबाइल पर गुजरेगा 14 दिन पहले, तो सबको आ जाएगा यू हैव कम इन कॉन्टैक्ट एंड यू आर हाई रिस्क, देयरफॉर यू शुड ट्राई टू टेस्ट योरसेल्फ। इसका फायदा ये है। कितना उपयोग हो पाया है, 4-6 महीने हो चुके हैं, आई एम नॉट टू श्योर। अभी तो ये लोग कह रहे हैं डेटा का बड़ा प्राइवेसी का इशू है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। काफ़ी दवाइयों को यूरोपियन ट्रायल चल रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में और बता दें, पब्लिक को ये बड़ा भ्रम है कि प्लाज्मा दिया पेशेंट ठीक हो गया। हमारे कई पेशेंट थे, डॉक्टर साहब प्लाज्मा लगवा दो, प्लाज्मा, मैंने कम से कम 200 पेशेंट इलाज किए खुद, इसलिए हमने कहा प्लाज्मा ट्रीटमेंट इज ए गुड ट्रीटमेंट बट इट इज डज नॉट इंश्योर दैट यूर पेशेंट विल बी 100% सेफ। लेकिन क्या होता है प्लाज्मा ट्रीटमेंट, अभी भी जो लोग संक्रमित हैं उन पर एंटीबॉडी बनती है, 14 दिन बाद उनकी एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और उनका प्लाज्मा निकाल लेते हैं और प्लाज्मा बैंक बना दिया, जैसे अपने आदरणीय केजरीवाल जी ने, और ब्लैंक में टेस्ट कर दिया और किसी पेशेंट को जरूरत हो चढ़ा दिया गया। लेकिन दिस इज अ गुड टेस्ट बट डज नॉट हैव 100% एफिकेसी। हर्ड इम्यूनिटी, एक हर्ड इम्यूनिटी वर्ड आजकल लोग पब्लिक बात नहीं कर रही, अदरवाइज तो बहुत लोग बोल रहे थे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है लॉकडाउन मत करो, सबको छोड़ दो, खुला छोड़ दो, सबको खुला छोड़ दिया तो आपको इम्यूनिटी हो जाएगी। लेकिन वो तब हो सकता है जब इसकी मॉर्टेलिटी हाई ना हो, इसीलिए लॉकडाउन वॉज ए वेरी गुड स्टेप व्हेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिड ऑन मार्च 24। लेकिन स्वीडन ने क्या किया, लॉकडाउन किया ही नहीं। उनको क्या शुरू में तो बड़ा फायदा हुआ, उनका हार्ड इम्यूनिटी आई, बाद में उनकी मॉर्टेलिटी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फिर मास्क और ये सब करना शुरू कर दिया। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई टॉक, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। आई थिंक अरे 7:30 बज चुका है, आधा घंटे ज़्यादा हो गया। शुड आई स्टॉप हियर और आई विल टॉक अबाउट द वेंटिलेटर ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर वर्कर्स। आपको बता दिया डॉक्टर्स कितने हैं। अच्छा ठीक, देयर इज नो हरी, ओके देन आई विल टेक। वेंटिलेटर ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा। कई अस्पताल को बड़ी बदनामी मिलती थी, आप साल भर पुराने देखिए, प्राइवेट सारे डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पर डाल दिया। अरे क्यों डाला, कोई मौज मस्ती के लिए तो डाला नहीं, पैसा के लिए बनाने के लिए डाल दिया, इससे पैसा ज़्यादा बनता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आवर हेल्थ केयर टीम डिस्पाइट डूइंग द बेस्ट, 1% 2% तो हर जगह गलत होते हैं, आप उसको कह नहीं सकते। लेकिन वेंटिलेटर इज अ लाइफ सेविंग मशीन, और वेंटिलेटर का मतलब ये नहीं होता कि आप निकाल नहीं सकते। जब बाईपास सर्जरी होती तभी वेंटिलेटर लगता है, कोई और सर्जरी होती है वेंटिलेटर लगता है। फेफड़े में पानी आ गया तो फेफड़े के पानी को तो ऑक्सीजनेशन इतना पुअर हो गया कि बॉडी के अंदर सैचुरेशन गिर गया। जब सैचुरेशन ऑक्सीजन ऊपर लगाने के बाद भी नहीं आ रहा हो, उसके अलावा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर होता है जो ऊपर लगाते हैं, एक होता है इंट्यूबेट करके, यानी कि ट्यूब डाल दिया ट्रेकिया में, और फिर वेंटिलेटर मशीन तो वो डायरेक्ट पंपिंग करती है विद ए स्पेसिफिक प्रेशर, सो दैट ऑक्सीजनेशन और बॉडी के अंदर की ऑक्सीजन की क्षमता, जिससे कि बॉडी सर्वाइव करे, एसिडोसिस ना हो, वो रहे। तो वेंटिलेटर ट्रीटमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मोडेलिटी। लेकिन साथ साथ अमेरिका में स्टडी हुई कि अगर जो लोग वेंटिलेटर पर चले गए उनको रिस्क ऑफ डेथ, यानी कि वो पेशेंट ज़्यादा बचे नहीं। इसका मतलब नहीं कि वेंटिलेटर, उसका मतलब ये है कि वेंटिलेटर अवॉइड करिए, लेकिन एक लेवल पे तो लगाना ही पड़ता है। हमारे एक दोस्त थे, आप बताने में कोई बुराई नहीं हो, तो अखबारों में भी आया था, नाम नहीं लूँगा, LNJP हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की डेथ हुई थी, और जिसको 1 करोड़ रुपये अपने केजरीवाल जी देने गए थे उनको। वो हमारे बड़ा क्लोज फ्रेंड थे, नाम भी लेने कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर अश्विन गुप्ता। ही वॉज माई क्लास फेलो and he was working in LNJP hospital and he got infected in the treating of COVID because anesthetist था ना वो, तो anesthesia वालों को ड्यूटी लगती है अंदर। अब उसको आखिर दिन तक वो वेंटिलेटर अवॉइड करता रहा क्योंकि वो खुद एनेस्थेटिस्ट था। ही वॉज कॉन्शियस, उसने कहा मुझे NIV लगाते रहो, ऑक्सीजन देते रहो, सैचुरेशन 90 मेंटेन कर रहा है, डोंट पुट वेंटिलेटर। अब अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ कोरोना से नहीं हुई। मैंने कहा ना क्लॉट बन जाता है, क्लॉट वाला टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। वी आर लर्निंग एवरी डे। तो जैसे मैं अपोलो हॉस्पिटल में क्लॉट वाली टेस्टिंग एवरी सेकंड डे करता हूँ, कुछ लोग एवरी वीक करते हैं, कुछ लोग करते हैं पहली बार फिर आखिरी करते नहीं है। तो एक क्लॉट की टेस्टिंग होती है, मैं बताना चाहूँगा, जो भी डॉक्टर सुने या नॉन मेडिकल सुने, सिंस नथिंग टू क्रिटिसाइज, कितना बॉडी के अंदर क्लॉट बनने की क्षमता है। तो टेस्ट होता है डी डाइमर, मैं तो हर पेशेंट को हर दूसरे दिन करा लेता हूँ। एक लेवल होता है 500 से कम हुआ तो नॉर्मल है, 500 के ऊपर हुआ
किसी का 30,000 होता है, किसी का 20,000 होता है, तो हमको खून पतला करने की दवा देनी पड़ती है. आवर फ्रेंड वॉज लॉस्ट बिकॉज ही हैड ए सीवियर पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पैर का क्लॉट उसके फेफड़े में चला गया एंड ही क्रैश्ड. एक दिन पहले, डेथ के पहले उसने फ़ोन किया अपने दोस्तों को, वीडियो कॉल की, आई एम ऑल राइट, आई एम गेटिंग बेटर. तो व्हाट आई मीन टू से कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑल द हॉस्पिटल्स, आई कैन नॉट टीच एवरीबडी, दोज पीपल हु आर लर्निंग, डॉक्टर्स हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, शुड कीप डूइंग दीज आइमर टेस्ट, क्योंकि बड़ा सिंपल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, इसकी रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाती है, एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे, खास करके जो लोग सिक हैं, जिससे कि वी कैन मेंटेन द, ठीक है. प्लाज्मा को बता दिया. चाइना का रोल है बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बड़ा मुश्किल है कहना कि वेदर इट इज़ ए ह्यूमन वायरस, इट इज़ ए बायो वॉर. अब हमारे जो मैंने वेबिनार किए हैं उसमें कई स्पिरिचुअल मैसेजेस हुए हैं, अलग अलग लोगों के हुए हैं, कुछ आरएसएस के लोगों के, कुछ मिनिस्टर्स के, कुछ कई लोगों का तो यही दावा है. अभी तक ट्रम्प साहब तो इसको इस बात से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि वाई चाइना इज नॉट अलाउइंग. चाइना ने इतनी जल्दी किट कैसे तैयार कर ली, पीपी किट जल्दी कैसे तैयार कर ली, दे वर अवेयर. So, but this virus is so dangerous virus, it cannot be a natural virus. This is a feeling of experts, not me, जो वायरोलॉजिस्ट है. यानी समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. अगर ऐसा है तो आज कोरोना है तो अगले साल सोरोना भी हो सकता है, उसके बाद कोरोना भी हो सकता है. व्हाट आई मीन टू से, if somebody has done it or some country has done it, then we have to really work very hard that it should not happen again. नहीं तो इस तरह से तो प्रलय आ जाएगी. इससे शायद सॉर्ट ऑफ प्रलय की भाई आज ये कर लिया, कल वो कर लिया. दे डोंट केयर अबाउट द पीपल लाइफ. आई मीन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. आई एम नॉट एक्सपर्ट टू कमेंट, बट द वे द थिंग्स आर मूविंग. हार्ट के बारे में आपको ये लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा, फिर बात करूँ, कुछ 2-4 क्वेश्चन भी ले लेंगे. मॉर्टेलिटी जो है, जो हार्ट पे 80% से ज़्यादा लोग हैं उनकी 15% मॉर्टेलिटी है. दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस. जिनको हार्ट डिजीज है 10% मॉर्टेलिटी, मतलब 100 में से अगर 100 लोग कोरोना हुआ, उनकी उम्र 80 साल के आसपास है, 15% लोगों की डेथ हो जाएगी. बहुत ही ज़्यादा हाई, वेरी हाई मॉर्टेलिटी. जिनको डायबिटीज़ है 7%, यानी कि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन द क्योर. जिनको हार्ट डिजीज बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी 10%. ये डाटा फरवरी का है, लेकिन दिस हैज नॉट चेंज्ड मच. द सिमिलर डेटा इज देयर. ओवरऑल मॉर्टिलिटी वर्ल्ड की 2.3% है, जिसमें यंग लोग भी है, बट आई थिंक इट इज मच मोर देन दैट. दैट इज कमिंग ऑन टू द एंटीबॉडीज टेस्ट एंड देन we have other things, but I think this is okay. So we can take few questions. I am sure there are a lot of questions which are remaining answered. क्योंकि मैं अपने दिल की बात बोल रहा था कि how the things will move. अब आगे क्या होना है, आगे कैसे नहीं होगा. I got a call from ministry कि whether should we continue this lockdown or should we not. So I'll stop sharing the slide and then we can take some questions and discuss a little more on society and future of corona disease. So, Dr. Vivek, first of all, thank Dr. Saab, very nice information and great presentation, and it's a really helpful one. And I want to know कि जो वैक्सीन का जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिया में क्या स्टेज है और कब तक अवेलेबल होगा. देखिए ऐसा है कि चाहे इंडिया की वैक्सीन आए चाहे बाहर की आए, इंडिया में अवेलेबिलिटी होने की इंपॉर्टेंट बात है. अभी तक जो रेस में हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं कहूँगा जो एक्चुअल रेस में है, जो एथिकली करेक्ट है और जो सारे ट्रायल कर रहे हैं, वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका के साथ में, और दूसरी वैक्सीन है अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन. चाइना की वैक्सीन में लोग विश्वास ही नहीं कर रहे. अब हम भी नहीं विश्वास करेंगे आप भी कि वेदर चाइना वैक्सीन सही है गलत है. आई मीन बिकॉज इट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. आई मीन इट्स नथिंग टू जोक अबाउट. तो ये 2 वैक्सीन है, इनका जो चांसेस है वो एंड ऑफ द ईयर में आएगी. अब रशिया की वैक्सीन के बारे में आप रोज़ पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल, एक्चुअली वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किया वो सिलेक्टेड लोगों का, वो कह दिया 12 अगस्त को लॉन्च कर दी. इट्स नॉट लॉन्च, इट्स ए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो कि एक पार्ट ऑफ ट्रायल होता है. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को भी ट्रायल में इंक्लूड कर लिया. दैट इज पुतिन साहब से मेरी मुलाकात भी है. आई रिकॉल वन मोमेंट व्हेन आई मेट मिस्टर पुतिन व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट. दैट वाज 7-8 years बैक इन बॉम्बे. बट मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि शेयर करके मज़ा आता है. मैंने उनसे हाथ मिलाया, इतना स्ट्रांग हाथ है, बर्फ़ कहते हैं लोहे का हाथ. मैंने ऐसे हाथ कभी नहीं मिलाया. मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हाथ मिलाया कई बार, तो उनका इज़ अ वेरी सॉफ्ट थिंग, लेकिन ऐसा लोहे का हाथ, आई थिंक इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, डजंट मैटर, बट ही इज़ अ स्ट्रांग मैन. इसका मतलब ये हुआ, कहते ना किसी कोई बहुत बड़ा कुश्ती पहलवान का जो हाथ होता है वैसा हाथ. हमने कहा हाथ मिलाया, अरे उससे ऐसा जकड़ लिया हाथ कि मेरा हाथ में दर्द होने लगा. और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी भी बड़ा अच्छा शेक हैंड करते हैं, बट ऑफ कोर्स
उनका कुछ लगता है पहलवान वाला हाथ है, इसलिए डजंट मैटर। तो पुतिन साहब ने अपनी बेटी को भी कर लिया है। वो ट्रायल का मामला है कि वो भी केवल 1200-1300 पेशेंट का ट्रायल के बाद अगर वो सक्सेस रेट ले भी आते हैं तो मैं अपने को लगवाने में तो हिचकूंगा। आई मीन वो लॉन्च कब करेंगे, वो कह रहे हैं सितंबर में लॉन्च कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग इट्स ए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो अक्टूबर नवंबर में शायद उनकी आ जाए। लेकिन जो मॉडर्ना वैक्सीन है, अब भारत बायोटेक है, फेज 2 में है, आई रिक्वेस्ट दैट वी शुड नॉट डू शॉर्टकट, चाहे थोड़े दिन बाद आए, लेकिन ऐसी चीज़ आए जिसमें आपको विश्वास हो, जिसको लगवाने में कोई रिस्क ना हो। तो आई फील दैट एंड ऑफ द ईयर, जैसे अगस्त तो आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हैं, वी विल हैव सम वैक्सीन एंड वी शुड। बट कितने दिन काम करेगी ये भी एम्पेरिकल है, साल में एक बार लगनी है, हर 3 महीने पर लगनी है, ये सब बात सोचने वाली बात है और रिस्क ना हो। ऐसे 1-2 वैक्सीन और भी हैं, जैसे आज की स्टडी एक आई ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन की, BCG वैक्सीन, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो कुछ एंटीबॉडी मैच करती है तो लोगों को फ़ायदा होगा। अब उसको मैं बात करूंगा अपने लोगों से। एक और वैक्सीन है, MMR वैक्सीन है, उसमें भी कुछ एंटीबॉडी 30% मैचिंग है, वो बाथरूम की, अरे अभी नहीं, तो उसमें भी लगाने से फायदा हो सकता है। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर विल हैव इट। इंडिया की भी आई थिंक तभी तक आ जाने की उम्मीद है। आगे लगा। अक्षर, पूरन कैन वी म्यूट एवरीवन? हाँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आ गई, कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ भी आता है। तो वैक्सीन आना जरूरी है, लेकिन आ जाएगी, दिस इज फॉर श्योर आ जाएगी। इट विल नॉट बी लाइक एड्स कि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। बाकी HIV का इलाज आ गया, वैक्सीन ना भी आए, इलाज आ जाए ना। हम लोग मैं अभी भी सरकार से कहूँगा कि कुछ ऐसे ट्रायल्स हैं जो कि पेंडिंग हैं, उसको ट्रायल ले आए। जैसे हमारे फादर का ट्रायल जो है वो अभी ट्रायल में नहीं आया है, उसको ट्रायल में ले आए हैं। तो ट्रायल में लाने से पता लगेगा कोई ऐसी दवा कारगर निकल, जैसे जो क्रोसिन है, एस्प्रिन है, एटोरवास्टेटिन, आई एम नॉट गिविंग एग्जाम्पल, जो पर्पस जिसे और है उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कोरोना में फ़ायदा करेंगी। हमारे फादर ने प्रपोज किया है, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, डॉक्टर ML गुप्ता। उनका आप गूगल में देखेंगे तो उनके अश्वगंधा के ओरिजिनल रिसर्चर वही हैं। उन्होंने 1986 में पब्लिश किया था अश्वगंधा कि इसमें एंटी कैंसर और इम्यून बूस्टर एक्टिविटी है। मतलब अभी तक वो आर्टिकल अभी तक साइट होता है, जो भी अश्वगंधा पर लिखता है तो गुप्ता एटाल करके आता है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही हैज़ डन दैट इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड मोर देन 150 ओरिजिनल रिसर्च। एक होता है कॉपी पेस्ट रिसर्च कि भाई उसने किया, हम अपने एक टेस्ट हुआ अमेरिका में, उसको चलो इंडिया में ट्राई कर लें, एक होता है। और दूसरा होता है ओरिजिनल, आपने दिमाग में सोचा कि यार ये फ़ायदा करेगी, इसको अलग तरीके से रिसर्च करी जाए। और उनके ओरिजिनल रिसर्च मोर देन 120-150 है, वो वन ऑफ द टॉप जर्नल्स में। तो कभी आपकी मुलाकात कराऊंगा, ही विल स्पीक सम टाइम ऑन योर वेबिनार। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, वन क्वेश्चन। सर, एक छोटा क्वेश्चन है, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए आपने जो बोला है कि इट्स अ मेडिसिन व्हिच यू कैन टेक ऑन अ प्रिवेंटिव बेसिस, तो इसके लिए भी लेकिन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ट्राई करना है, कैसे करना है? हाँ, एक्चुअली ये OTC टेबल, अब OTC नहीं रही है। अब चूंकि इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई, अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये नहीं मिल रही है। तो मैं आपको एक बार व्हाट्सअप कर देता हूँ लोगों को, उससे काम हो जाता है। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में एक बात में, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं और जो हेजिटेट कर रहे हैं, दोनों के लिए कहना चाहूँगा, अगर किसी का QTC इंटरवल होता है ECG में, मैं ECG कॉपी नहीं तो दिखाया था, तो दैट इज़ द इंटरवल विच इज़ स्पेसिफिक इंटरवल। अगर वो 500 से नीचे है या वो इंटरवल केवल 450 के नीचे है, जो कि ज़्यादातर लोग का होता है, तो हम सेफली दे सकते हैं। अगर 500 के ऊपर है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि 100 में से 5 ही लोग होते होंगे, यानी कि 95%। अब क्यों सबको लेना चाहिए? अभी तक हेल्थ केयर वर्कर के लिए था। हेल्थ केयर वर्कर क्यों था? हेल्थ केयर वर्कर क्योंकि उनको कोरोना के पेशेंट आते हैं तो दे आर मोर susceptible and they are more prone and they are more exposed. अब everybody is exposed because there is no lockdown, it's unlockdown. तो मेरी तो ये है, अभी ICMR ने ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं, लेकिन हम गाइडलाइन के अलावा हम लोग भी सोचते हैं, we also have brains. I would say that everybody should take it if his ECG, अगर आप हर हफ्ते या हफ्ते में 15 दिन में टेस्ट कराते रहिए, ECG में QTC इंटरवल खराब नहीं होता। लेनी भी कितनी है? 400 मिलीग्राम हफ्ते में एक बार, रोज नहीं खानी है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और अगर हम इसको प्रोफाइलेक्सिस में, अब क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा विवादों में आ गई, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लास्ट वीक इवरमेक्टिन को एज ए प्रिवेंटिव यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया। इवरमेक्टिन इज़ अ मेडिसिन जो कि एंटी हेलमिंथिक, यानी कि पेट में कीड़े होते हैं ना, उसकी दवा दी जाती है। आपने सुना नहीं होगा, एल्बेंडाजोल इज़ मोर सेफ। ज़्यादातर लोग एल्बेंडाजोल देखते हैं, जेंटल के नाम से आती है, आप कई नाम से आती है। इवरमेक्टिन लोगों ने सोचा ही नहीं, क्योंकि उसके थोड़े साइड इफेक्ट ज़्यादा है।
अब उसको उन्होंने दे दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, तो आईसीएमआर दे रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, चॉकलेट बनवा के देने की कोशिश करी जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में कोई बुराई नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई पर्सनली फील क्यूटीसी इंटरवल नॉर्मल है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, प्रिस्क्राइब करा लीजिए 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार, केवल पहले दिन, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है। फिर 400 मिलीग्राम उन्होंने 7 हफ्ते बोला था, बिकॉज सोचा था 7 हफ्ते में कोरोना चला जाएगा। अब तो इंडेफिनेट है, तो 400 मिलीग्राम वंस ए वीक खाते रहिए और ईसीजी कराते रहिए वंस ए वीक, ना तो वंस 2 वीक्स करा लीजिए। ईसीजी 200-500 रुपए का होता है। अपने डॉक्टर को भेज दिए व्हाट्सएप पे कि ठीक है ईसीजी, हाँ ठीक है। देखिए ईसीजी कराइएगा मशीन, जो कंप्यूटराइज मशीन से कराइएगा, क्योंकि वो कंप्यूटराइज मशीन में ऑटोमेटिकली वो इंटरवल लिख के आ जाता है। अदरवाइज नापने के लिए तो उसको आपको कैलकुलेटर लेना पड़ता है, जो हर फिजिशियन नहीं कर पाएगा, वो कार्डियोलॉजिस्ट ही कर पाएंगे स्पेसिफिक। तो मैं अभी भी कहता हूँ दिस इज अ गुड रिकमेंडेशन, इट शुड बी टेकन बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज वर्किंग। अब जो घर में रह रहे हैं उनको जरूरत नहीं है, आई मीन जो बाहर जा रहे हैं उनको, पुलिस वाले हैं, लॉट ऑफ पुलिसमैन दे गॉट इन्फेक्टेड, डॉक्टर छोड़िए, नर्सेज छोड़िए, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और कई पुलिस वालों की डेथ भी हो गई, आपने देखा होगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस हैज किल्ड सो मेनी पीपल। तो कई बार हमारे फादर सोचते हैं कि अगर वो ट्रायल पहले हो गया होता, वो 3 महीने हो गया, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं हुआ है, तो शायद कुछ जाने बच जाती, कुछ एक्स्ट्रा जाने बच जाती। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Right. So, Alok, I would like you to give word of thanks to Dr. Vivek for such a wisdom that he has shared with us. Yeah. So thank you, डॉक्टर साहब। मैं आलोक, सभी की तरफ से मेरा एक पता है, आज आपने जो बात कह दी ना, आज आप ये मानिएगा कि पता नहीं क्या क्या था दिमाग के अंदर ना, कहाँ से बिच्छू जंचू पता नहीं, क्योंकि कोई व्हाट्सएप, कोई कोच, आपने आज ऐसी क्लियर कट गाइडलाइन दे दी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने हम लोग यहाँ सुन रहे हैं और अब हम जितने लोगों को बताएंगे, उन सबके जीवन में ये जो कोरोना की घटना है, ये होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अगर हो गया तो वो अच्छे बच जाएंगे, जैसा आपने भी बताया। बहुत धन्यवाद, और आपने इतने सरल शब्दों में बताया सारी बातों को, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे और धन्यवाद करूं। बहुत बढ़िया, और आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ गुजारा है, उसके लिए हम शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा आपके। और मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक दो बातें और शेयर करूंगा थोड़ा सा आपसे, पर्सनल बातें भी हैं और कुछ बाहर की बातें। मैं फ्रांस में काम करता था पहले, तो मैं इंडिया आया तो उस समय एंजियोप्लास्टी बहुत कम होती थी 98 में। अगर 2-4 मिनट का समय हो तो मैं कुछ दिल की बातें बोलना चाहता हूँ। तो उस समय हमने कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी, आई वाज वन ऑफ दोस्त को स्टार्ट, 2-3 स्टेंट लगते हैं ना जो आजकल कॉमन हो गए हैं, उसमें केवल 1 स्टेंट लगता था। लोग स्टेंट जानते भी नहीं थे, स्टेंट 98 में कहाँ लोग जानते थे, उसमें शुरुआत थी इंडिया में। तो एक हमने टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमारा आर्टिकल छापा, और टाइम्स ऑफ इंडिया में 3rd पेज पे इतनी बड़ी फोटो आई, जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि आई स्पोक अ लॉट अबाउट एंजियोप्लास्टी। बात यह है कि उस समय मैंने शुरू किया, और फिर मैंने उस समय ये भी कहा कि बाईपास सर्जरी इज स्टिल ए रिक्वायरमेंट, बट एंजियोप्लास्टी इज। एक दो बातें जो कुछ क्षण मुझे अच्छी तरह याद है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ के हैं वो, अगर इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट विद यू। मैं 2010 से उनसे मुलाकात कर रहा हूँ मैं, और पता नहीं मुझे पसंद आते थे। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री होंगे। ही वॉज गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड आई वॉज बिलोंगिंग टू यूपी। तो एक बार अहमदाबाद में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांग लिया। वैसे उनका उस समय भी घेरा बहुत तगड़ा था, ही वॉज हैविंग ह्यूज सिक्योरिटी, पता नहीं हाउ कुड आई रीच हिम। मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। पता है उनके साथ जो काम करते, ठीक है इनको कल बुला लो। उस समय फ़ोन आ गया कि आप आइए, तो गांधीनगर में मिला, कम से कम 45 मिनट की बात हुई 1 to 1। तो बड़े अच्छी बातें बताई उनसे मिलकर, मुझे बड़ा आनंद आया। तो जब भी गुजरात भवन आते थे ना दिल्ली में एज ए CM, तो मुझे पता लग जाता था, पता नहीं कैसे मैं पहुंच जाता था। एक बार बोले कि डॉक्टर साहब पता फ़ोन करके तो आया करो। हम तो फ़ोन करे बिना पहुंच जाते थे। नीचे बताते थे ऊपर उनका कमरा था कि डॉक्टर विवेक गुप्ता आए, तो बुला लेते थे, बैठे रहते थे 15 मिनट। हर बार फोटो भी नहीं खिंचवाई, किसी ने सोचा नहीं। 13 में मुलाकात हुई, दिसंबर 13 में। उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, आई वॉन्ट गिव अ क्रेडिट टू। देखिए बाकी बातें सबको पता है कि इज ए शार्प मैन, इज ए वेरी इंटेलिजेंट, वो अलग बात है, मेहनत करते हैं। लेकिन देखिए ताज पैलेस में एक बार मुलाकात हुई, तो मैंने पीछे से देखा, हमको लगा उन्होंने मिस कर दिया हमको। दिसंबर 13 उस समय दिल्ली के चुनाव होने वाले थे, हो चुके थे, उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया गया था। 14 मई में चुनाव हुए, आपको पता है। तो एक शादी में आए थे, आई वॉज इन्वाइटेड, आई डिड नॉट नो दैट ही विल बी कमिंग। तो पता लगा भीड़ आ रही, मोदी साहब आ रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं। मैं भी लाइन में लग गया। मैंने पीछे से जोर से बोला, हमने नमस्कार सर। वो देख चुके थे हमें, आई थॉट ही इज नॉट सीन। उन्होंने जवाब दिया, आपके डॉक्टर साहब आपके मैसेजेस मिल गए थे, मैं जवाब नहीं पाया। मैंने मैसेज दिए थे, ऑल द बेस्ट फॉर दिल्ली चुनाव,
क्योंकि दिल्ली चुनाव में उस समय हुए थे, तो उनको ये दिया था, उन्होंने तपाक से जवाब दिया, पीछे बिना मुड़े, हल्का से मुड़े कि आपके मैसेज मिल गए थे, मैं जवाब नहीं दे पाया। तो देन आई थॉट कि कितना शार्प ब्रेन है। उसके बाद तो हमने एक बार राष्ट्रपति भवन मिले, वैसे तो मिलते रहते हैं, मुलाकात भी हुई है, तो हमने कहा कि सर कब आ जाएं, डॉक्टर साहब आप जब मनो तब आ जाओ। अब प्रधानमंत्री जब मनो थोड़ी होता है, जब आप बुलाओगे अपॉइंटमेंट होगा तभी तो आएंगे। उसके बाद मुलाकात हुई, अलग बात है। आई मीन हमारे बेटे को एक बार मुलाकात हुई, मैं नहीं था, तो बेटे ने जोर से बोला राष्ट्रपति भवन में, धोनी को पद्मा अवार्ड मिल रहा था, तो ही वेंट देयर एज ए गेस्ट ऑफ इनवाइटी। मैं नहीं था बिकॉज आई केम बैक फॉर सम रीजन। चाय पानी नाश्ता चलता है, उसने मैं डॉक्टर चिन्मय गुप्ता हूँ, सन ऑफ डॉक्टर विवेक गुप्ता। ही हैड क्रॉस्ड हिम, ही केम बैक, विवेक तुम विवेक के बेटे हो, हाथ मिलाया चले गए। आई मीन अच्छा, बट ही इज ए मैन ऑफ फुल एनर्जी। अभी चुनाव 2019 के चुनाव के बीच में ही केम एंड शुक हैंड्स विद मी। उनका आपको अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ एक फोटो, इसलिए देखिए क्योंकि आप लोग सब लोग शायद ना मिले हों। अब इनका शेक हैंड वाला स्टाइल अभी देखिएगा, वह 2-3 वाला बात है। ये देखिए स्टाइल, दिस इज 2014 या 15। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक फोटो। आई एम नॉट, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप मत सोचिएगा कि मैं आप जानबूझ से दिखा रहा हूँ फोटो, लेकिन प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ। अब ये स्टाइल है 2010 का। कैन यू सी द स्टाइल ऑफ हैंडशेक? इज इट पॉसिबल? कैन यू सी दिस? ये मेरी पहली मीटिंग थी, और जब पहली मीटिंग में आप किसी मुख्यमंत्री से मिलोगे तो आप ये नहीं कहोगे डॉक्टर साहब मुझे ऐसे फोटो खिंचवानी है। तो जब मैं फोटो के लिए खिंचा, उसमें मेरे पास मोबाइल था, उसमें फ्रंट कैमरा नहीं होता था। ये है 2010 में फ्रंट कैमरा नहीं था, तो आप सेल्फी ले नहीं सकते हैं। तो मैं सेल्फी, उनका कुछ बात नहीं है, मैं बुलाता हूँ। एक आदमी बुलाया उन्होंने, कहते हैं डॉक्टर साहब फोटो ऐसे खिंचवाई जाती है। ही मेड ए पोज हिमसेल्फ, और वही स्टाइल आपने वो देखा, वही पकड़ने का स्टाइल जो है ना, हाथ पकड़ने का सेम, ये 2014-15 का है। कैन यू सी दिस हैंडशेक? दिस इज व्हेन ही मीट्स द पीपल, ही हैज सच ए ग्रिप। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जो आप लोग, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं किस तरह लोग मिल रहे हैं, तो इनमें एक बड़ी खास बात है। और ये आई थिंक दिस मैन इज एनर्जी इतनी ज़्यादा है, जब भी मिलेंगे आपसे बड़े प्यार से मिलेंगे। He will smile with everybody, sleeps less. I don't know how does that. तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उनकी क्या क्या शख्सियत है। वैसे मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मुलाकात की, बहुत लोगों से मुलाकात है, सबसे अखिलेश हमारे पर्सनल दोस्त हैं, वो अलग बात है। नेताजी मुलायम सिंह का मैं इलाज करता रहा हूँ अभी तक। आई बिलोंग टू लखनऊ, सो बट दिस मैन इज फार फ्रॉम अदर्स। आई थिंक आलोक जी आप यू विल एग्री विद मी। तो आप अगली बातें, बहुत ऐसी बात किस्से हैं जो रिकॉर्डिंग में नहीं बताने चाहिए, जो 2-3 बातें जो मुझे पसंद है वो मैंने आपको शेयर करी है। एंजियोप्लास्टी मेरा पैशन है, मेरा रिकॉर्ड है 2 मिनट 40 सेकंड में एंजियोग्राफी का, 1-2-3 मिनट। मैं लोग कहते हैं कि आप जब शुरू की और खत्म की कब है। एक बार अखिलेश हमारे दोस्त हैं, मुलाकात करा रहे थे जया बच्चन से। ये डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं और ये 3 मिनट में एंजियोग्राफी करते हैं। मैं इनसे कहता हूँ आराम से किया करो। मैंने कहा आराम से क्या कर रहा है, जब मैं 6 मिनट का रिकॉर्ड है मेरा स्टेंट लगाने का, और 9 मिनट का 2 स्टेंट का। तो ये भगवान ने दिया है, कुछ बातें हैं, कुछ अच्छा लगता है। टॉपर हूँ अपने बैच का, पीएम की फर्स्ट अटेम्प्ट टॉप किया मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप करना भी लोग आसान नहीं, सिलेक्ट ही नहीं होते लोग, बट आई टॉप। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। पर्सनली मिलेंगे आलोक जी, बड़ा अच्छा लगा आप लोग के ये मिरेकुलस वालों से। और कई बार हम लोग हाई ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे, डायबिटीज़ पे बात करेंगे, वी कैन टॉक ऑन एंजियोप्लास्टी स्पेसिफिकली। अभी कोविड का जमाना है, तो कोविड बात की आपसे मैंने। Reality is exceptional. Thank you so much. Thank you, Dr. Thank you so much, विवेक जी। एक क्वेश्चन है सर आपसे। सर जैसे हमारी सोसाइटी में 7-8 केसेस हैं कोरोना के, दो वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस एंड मास्क वगैरह हम यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग। सो शुड वी अवॉइड टेकिंग लिफ्ट्स एंड ऑल, दो इट्स बीन सैनिटाइज्ड एंड एवरीथिंग? देखिए ऐसा है, हम लोग भी लिफ्ट में जा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आप अब जैसे हमारे अपोलो हॉस्पिटल में हमारे पास 6 फ्लोर हैं। अब 6ठे फ्लोर जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ लिफ्ट से जाऊँ। लेकिन अगर आपका फेस कवर्ड है और अगर आपने मास्क लगा रखा है तो देयर इज नो नीड टू अवॉइड द लिफ्ट। सो अवॉइडिंग द लिफ्ट इज नॉट द आंसर, यू हैव टू जस्ट कवर योर फेस, दैट्स ऑल। अवॉइड शेक हैंड्स। अगर लिफ्ट में जैसे लोग कहते हैं उल्टा खड़े होइए, सीधा खड़े हो, टेक्निकली तो इम्पॉसिबल है ना, आप कितना उल्टा खड़े रहोगे। अच्छा हमारे साथ में हेमंत गुलाटी जी भी दिख रहे हैं, हमें पांडे जी भी दिख रहे हैं, तो आपको नवीन पांडे भी हमारे दोस्त हैं पुराने, इनको हलो करूंगा। ये LM सिंघवी साहब के साथ में हम लोग की मुलाकात हुई। LM सिंघवी साहब भी बड़े स्पेशल व्यक्ति थे, शायद नवीन जी बाद में बताएंगे। लक्ष्मीवाल सिंघवी, अभिषेक सिंघवी फादर, वेरी मैन, चैरिस्मेटिक मैन, फुल ऑफ नॉलेज, मुझे अपना बेटा जैसा मानते थे। इट्स वेरी सैड टू लूज हिम। तो लिफ्ट की अवॉइड करने की जरूरत नहीं है मैडम।
आप आराम से लिफ्ट में जाएं, लेकिन ये देख रखिए कि आप फेस कवर्ड हो, दैट्स ऑल, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you everyone, and thank you Dr. Saab. We'll be meeting very soon again, and we'll invite you very soon to talk about different topics, as you have a lot of wisdom, and we are really thankful for you for being here. बस एक चीज और है, अपना राम राज्य आ जाए, उसकी कमी रह गई है, और राम मंदिर तो बन ही गया है, तो बन जाएगा मतलब, तो दैट्स ओनली थिंग। भगवान को आशीर्वाद लेते हुए आप सबसे नमस्कार। और कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी परसों निकली, विष्णु जी के अवतार हो रहे हैं, अब अगला अवतार कौन होगा, कब आएगा, ये पता नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो ये छोटा सा हमने वेबिनार पे कुछ बातें बताई। दिस वाज मिरेकुलस, इवन नेम इज मिरेकुलस, एंड आई स्पोक इन हिंदी और इंग्लिश बोथ। तो कोरोना से ज़्यादा डरिए मत, लेकिन प्रिवेंट करिए, ना हो जितना अच्छा है, हो जाए तो जल्दी इलाज शुरू हो जाए, दैट इज़ द बेस्ट वे। थैंक यू वेरी मच। 14 अगस्त इवनिंग, और कल आज़ादी की आप लोग को सबको शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। थैंक यू।